नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और इस वक्त महायुद्ध की तैयारी चल रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका की चेतावनी के बाद भी ईरान ने इजराइल पर हमला बोल दिया है। ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलें अब तक दाग दी हैं। ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें आसमान में सैकड़ों मिसाइलें देखी जा सकती हैं। हमले के बाद से इजराइल में हर तरफ सायरन की आवाज गूंज रही है। इजरायली सेना ने बताया कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इजराइल के लोग बंकरों में छुप चुके हैं। वहीं इजरायली सेना के मुताबिक सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। सेना ने बताया है कि लाखों लोगों को बम शेल्टरों में भेजा गया है ताकि लोग सुरक्षित रह सके। सोशल मीडिया पर हमले की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें यह देखा जा सकता है कि इजरायली मिसाइलों से उसे इंटरसेप्ट किया जा रहा है और ईरानी अटैक को हवा में ही बेअसर किया जा रहा है। तो फिलहाल कुछ ऐसी मिसाइलें भी कई जगहों पर रही जो पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो पाई है और कई जगहों पर धमाके भी हुए हैं, लेकिन इजराइल का इस पर भी ये स्पष्ट कहना है कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए किसी को भी घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही आपको याद होगा कि जिस तरीके से जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो इजराइल पर हमला सबसे पहले हमास की ओर से किया गया था और यह इतिहास इजराइल और हमास के बीच का युद्ध का पुराना है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसे ही हमले किए जाते रहे हैं। हर बार बातचीत होती है, युद्ध विराम हो जाता है, लेकिन फिर कुछ समय बीतने के बाद यानी कुछ साल बीतने के बाद से फिर जस की तस स्थिति दिखाई देती है। अब इजराइल पर जब हमास की ओर से हमला किया गया था तो उस दौरान भी नेतन्याहू ने यह कहा था कि किसी भी कीमत पर इस बार हम हमास को पूरी तरीके से मिटाने के साथ ही दम लेंगे, तब तक हम इस युद्ध को नहीं रोकेंगे। דבריי, אני שולח תנחומים למשפחות נרצחי הפיגוע הנפשע ביפו ואיחולי החלמה שלמה לפצועים. כמו במתקפת הטילים, גם מאחורי הפיגוע הזה יש יד מכוונת ורצחנית. היא מגיעה מטהרן. הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. Before I began, I wanted to say a few words about Iran's missile attack on Israel today. At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and the U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. And I've been spent the morning and part of the afternoon in the Situation Room and meeting with my whole national security team and consulting with the Israelis indirectly because, in terms of their impact on us. And the national security team has been, as I said, in constant contact with Israeli officials and their counterparts. Today, Iran launched approximately 200 ballistic missiles at Israel in a reckless and brazen attack. I condemn this attack unequivocally. I'm clear-eyed. Iran is a destabilizing, dangerous force in the Middle East, and today's attack on Israel only further demonstrates that fact. Earlier today, I was in the Situation Room with President Biden and our national security team as we monitored the attack in real time and ensured that the protection of U.S. personnel in the region is paramount. I fully support President Biden's order for the U.S. military to shoot down Iranian missiles targeting Israel, just as we did in April. We are still assessing the impact, but initial indications are that Israel, with our assistance, was able to defeat this attack. Our joint defenses have been effective, and this operation and successful cooperation saved many innocent lives.
तो देखिए, इजराइल पर हमले के बाद दो धड़ों में इस वक्त दुनिया बटी हुई है। ईरान ने एक बड़ी गलती की और उसे कीमत भी चुकानी पड़ेगी, ये इजराइल की ओर से कहा गया है। जो कोई भी हम पर हमला करेगा, हम उन पर हमला करेंगे, इजराइल ने यह स्पष्ट कर दिया है। ईरान की कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक इजराइल हमला करता रहेगा, ये ईरान की ओर से कहा गया। तो वहीं मध्य पूर्व में बाइडेन प्रशासन पूरी तरह विफल साबित हुआ है, ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ओर से कहा गया। ये खूनी नाटक केवल तनाव बढ़ा रहा है और ईरान मध्य पूर्व में खतरनाक और अस्थिर वाली ताकत बन चुका है, ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से। तो वही देखिए, वॉशिंगटन की तरफ से जब ये बयान सामने आया था तो इसको लेकर के कहा जा रहा था कि फिलहाल युद्ध की स्थिति अभी भी शांत होने के और बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इजराइल की सुरक्षा के लिए हम हमेशा ही प्रतिबद्ध है और अमेरिका ने जिस तरीके से इजराइल को यह भरोसा दिलाया है कि अगर किसी भी तरीके से सहायता की जरूरत होगी तो इजराइल की मदद की जाएगी, हम इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, ये ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है। तो अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं युद्ध को लेकर के साथ सामने आ रही हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं इजराइल के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे देश जरूर है जो कि इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच की तनातनी अभी और कितनी बढ़ेगी और ये युद्ध किस ओर आगे बढ़ेगा, ये तो खैर समय बताएगा। फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त ये युद्ध की स्थिति अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। ईरान ने इजराइल पर अब तक 181 मिसाइलें दागी हैं। ऐसे में नुकसान जरूर उठाना पड़ा है क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम, जो एयरडोम जिसे कहा जा रहा है, वो पूरी तरीके से कारगर इस दौरान साबित नहीं हो पाया है। कुछ जगह पर धमाके जरूर हुए हैं लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान इजराइल को नहीं उठाना पड़ा है। तो फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अभी भी जो वॉर की स्थिति इस वक्त इन दोनों देशों के बीच में बनी हुई है, ये और ज्यादा भयावह हो सकती है। और देखिए, इस पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जुड़ चुके हैं, अमरदीप त्यागी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका, आप रक्षा विशेषज्ञ है। और अनुपम तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी रक्षा विशेषज्ञ है, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी अमरदीप सर कि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच में, इन दोनों देशों के बीच में अगर युद्ध और भयावह होता है तो फिर ऐसे में इसका क्या दंश भारत को भी झेलना पड़ सकता है या कुछ और भी देशों को झेलना पड़ सकता है? देखिए, ये तो भयावह होना ही है, कोई ऐसा सीन नहीं है। बिकॉज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स ईरान ने किया है और इजराइल तो शांत बैठने वाला नहीं है और ईरान इजराइल के सामने कभी स्टैंड नहीं कर पाएगा। बिकॉज द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, काइंड ऑफ वेपनरी इजराइल के पास है, ईरान उसके सामने नहीं है। हाँ, जो जिस तरह का सपोर्ट ये हिजबुल्लाह को कर रहे थे, उसमें मुझे लगता था कि इजराइल को दबा लिया जाएगा और इजराइल कुछ समय से शांत था। लेकिन अब जो ये शुरुआत हुई है ना, इसका अंत जो है बहुत भयावह होने वाला है और इसका इम्पैक्ट न केवल भारत पर, पूरे विश्व पे पड़ने वाला है। देखिए, जिस तरह की ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है या व्यापार है, जो महंगाई बढ़नी है, इस तरह के इम्पैक्ट सालों पे आएंगे। बट ठीक है, पहले भी जो विश्व युद्ध हुए हैं उस विश्व युद्ध में भारत सिर्फ क्योंकि ब्रिटेन की कॉलोनी था उस वक्त, इसलिए उसको इन्वॉल्व होना पड़ा। लेकिन भारत पहले दोनों विश्व युद्ध वैसे भी मतलब इन्वॉल्व नहीं था और अभी भी मुझे लगता नहीं है कि भारत कहीं इन्वॉल्व होने वाला है। जो सारे विश्व पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बाकी देशों पे पड़ेगा, महंगाई का, तेल सप्लाई का, छोटा मोटा इम्पैक्ट तो सारी दुनिया पे पड़ेगा, भारत पे पड़ेगा। लेकिन भारत अपनी तरफ से जो है, जो वसुधैव और शांति की नीति अपनाए हुए है, उसके कारण से वी आर नॉट गेट इन्वॉल्व इन दिस। यस, ये जो है एस्केलेट होना ही है। बिकॉज इस तरह के सारे मुस्लिम कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्रीज जो है, वो सारे यूनाइट हो रहे हैं। उसी तरह जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाहे उसमें यूके हो
यूएस हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, वो भी सारे एक होने हैं। हाँ, कुछ वजह से कुछ लोगों के जो कुछ देशों के जो पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट है वो अपोजिशन में है, जैसे रशिया हुआ, चाइना हुआ, वो इनके साथ जा सकते हैं। इट इज गोइंग टू एस्केलेट, देयर इज नो डाउट इन दैट। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। अनुपम तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अनुपम जी, देखिए सबसे पहले हम ये भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि एक और जब ये मिसाइल हमले किए गए इजराइल पर, तो हमने सुना कि अली खेमनेई ने किस तरीके से कहा है कि हमें अल्लाह के आशीर्वाद की प्राप्ति हुई है और अल्लाह ने क्योंकि उस तरीके से हमारे ऊपर हाथ रखा है, इसी वजह से हमें जीत मिली है। एक तस्वीर भी उन्होंने एक्स पर साझा की। अब ऐसे में क्योंकि हमने ये देखा कि किस तरीके से इस्माइल हानिया का खात्मा किया गया, नसरल्ला का खात्मा किया गया, क्या हम ये मान सकते हैं कि अगला नंबर इजराइल? आप कहीं खेमनेई का तो नाम जोड़ दे इसमें? बहुत अच्छा, बहुत सही आकलन है सुरभि जी आपका। और अगर आपके चैनल पे मैंने ये बात सुनी थी और ये हकीकत भी है कि अयतुल्लाह अली खमैनी 2-3 दिनों से अंडरग्राउंड चल रहे हैं, उनको कहीं बंकरों में छुपा दिया गया है। यानी उनको कहीं ना कहीं शक है कि बहुत जल्द उनको भी एलिमिनेट इजराइल कर सकता है, क्योंकि मोसाद के हाथ तेहरान के अंदर तक है। ये सबने देखा था इस्माइल हानिया की मौत के समय। एक बड़ी पिक्चर मुझे जो समझ में आती है कि अगर ईरान का जो हमला है, इसको दूसरे प्रोस्पेक्टिव में देखें तो ये कहीं ना कहीं इजराइल को एक अपर हैंड दे देगा इस लड़ाई में। इजराइल को एक मौका मिल जाएगा कि वो ईरान के ऊपर अटैक करे, और इजराइल यही चाहता है, इनफैक्ट अमेरिका भी यही चाहता है कि जल्द से जल्द ईरान के ऊपर एक बड़ा अटैक इजराइल के मार्फत किया जाए, क्योंकि ईरान इस समय वर्ल्ड जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें एंटी अमेरिकन लॉबी में बहुत सक्रिय दिखाई देता है। और यही वजह है कि जो बाइडेन प्रशासन और नेतान्याहू का प्रशासन दोनों ये चाहते हैं कि ईरान को जल्द से जल्द बैकफुट पे ढकेल दिया जाए। अब ये बड़ा हमला करके जो कल रात में हुआ, उस हमले के बाद ईरान ने खुद ये मौका दे दिया है अपोजिशन को, यानी कि इजराइल को और अमेरिका को, कि वो उसके ऊपर अटैक करें। अयतुल्लाह अली खमनेई की सुरक्षा के भले ही इंतजाम किए जा रहे हों, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान के अंदर तक मोसाद के मोल्स यानी कि जासूस घुसे हुए हैं। बिना जासूसों की सहायता के नसरल्ला का कत्ल नहीं किया जा सकता था, बिना जासूसों की सहायता से हानिया नहीं मारा जा सकता था, और हमास के साथ भी यही चीजें देखी गई हैं। तो मोसाद एजेंसी हो या आईडीएफ हो, इन सब ने अपना जाल पूरी तरह से बिछा रखा था, और अब जो है यही चाह रहे थे कि ईरान की तरफ से पहला स्टेप लिया जाए ताकि रिटेलिएशन का मौका मिले। तो अब वो मौका ईरान ने दे दिया है। अब एक चीज और समझने वाली सुरभि जी यहाँ पर कि इसका अंत कहां तक जाकर रुकेगा। हकीकत ये है, जो मैं समझ पा रहा हूं, कि इजराइल और ईरान का जो वॉर या इजराइल के जो तमाम संघर्ष चल रहे हैं, वहां पर इजराइल तब बहुत आसानी से जीत जाएगा जब ये लड़ाइयां जल्दी जल्दी लड़ी जाएं। जिस तरह से गाजा में उसने ऑपरेशन किया, जिस तरह से लेबनान में ऑपरेशन किया, और अब जिस तरह से तीसरा टारगेट ईरान आ रहा है, यानी कि ज्यादा समय सीमा नहीं लग रही। आप देख रहे होंगे कि जल्द से जल्द एक के बाद एक नए टारगेट्स उसको मिल रहे हैं, इजराइल को मिल रहे हैं, और वो उनको एलिमिनेट कर रहा है, उनसे जंग लड़ रहा है। जितना लंबा वार चलेगा, जितना लंबा ये लड़ाई चलेगी, जैसे हमने रूस यूक्रेन में देखा है, युद्ध में देखा है, जितनी लंबी लड़ाई चलेगी बड़ी ताकतों को उतनी ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। इजराइल की भी स्थिति यही है। वैश्विक परिदृश्य में अगर देखें तो मूडीज ने उनकी रेटिंग घटा दी है। वैश्विक परिदृश्य में देखें तो तमाम चीजों के तेल के दाम बढ़े हैं, तमाम चीजों के दाम बढ़े हैं। तो अगर ये लड़ाई लंबी चलती है, जो कि इजराइल बिल्कुल नहीं चाहेगा, तो इजराइल को नुकसान होगा। इजराइल चाहेगा कि लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो। ईरान ने उसको यह मौका दे दिया है कि अब ईरान के ऊपर इजराइल अटैक कर सकता है, अमेरिका अटैक कर सकता है। तो एक बड़ा खेल चल रहा है, और कुछ हद तक रूस के राष्ट्रपति की बात भी सही है कि मिडिल ईस्ट में तनाव को क्रिएट किया जा रहा है, उसको सुलझाने की तरफ कोई भी नहीं जाना चाहता है। दरअसल यहाँ पर सब अपने अपने ये कुछ न कुछ फायदा देख रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, या फिर सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश हो, सब अपना फायदा देख रहे हैं। हकीकत यह है कि जिस तरह से एंटोनियो गुटेरेस ने, यूएन के चीफ ने कहा है कि इस समय जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो सीज फायर की है, और मुझे नहीं लगता कि सीज फायर की तरफ कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था जा रही है। ठीक है अनुपम जी, लौट मैं आपके पास। अमरदीप जी, मैं आपसे ये भी जरा समझना चाहूंगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से अनुपम जी ने भी ये बताया, तो सर अब एक और जब हम इस युद्ध की स्थिति को देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से खामियाजा दूसरे देशों को भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, आखिर ये कब तक शांत होने की हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं, या अभी ये शांत होने वाला नहीं है? क्योंकि दूसरी तरफ रूस ने भी आरोप लगा दिया अमेरिका पर कि अमेरिका कोशिश तो ये करता है कि मध्यस्थता कर दे, लेकिन वो मध्यस्थता करने की जगह वो आग में घी डालने का काम कर देता है। ये भी बात ठीक है रशिया की, लेकिन जिस तरह वो यूक्रेन पे हमला कर रहा है,
ठीक है, वो तो उसका ठीक है, लेकिन यदि इजराइल अपने डिफेंस के लिए कोई हरकत करता है या कोई एक्शन करता है तो रशिया उसको नेगेटिवली बोलता है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। देखिए, जितना हक रशिया को अपना डिफेंस करने का है उतना ही हक जो है इजराइल को अपना डिफेंस करने का है। अब रही बात कि ये कब तक चलेगा, देखिए महाभारत का युद्ध तब तक चला था जब तक आखिरी कौरव नहीं मारा गया था जी। तो ये युद्ध जब तक ये जितने भी आतंकी सोच के देश हैं जब तक ये नेस्तनाबूद न हो जाए या इनकी पूरी शक्ति को खत्म न कर दिया जाए जी। इजराइल को, या जो भी इजराइल की सोच वाले देश हैं या इजराइल के साथ वाले देश हैं, उनको रुकना नहीं चाहिए। बिकॉज जब तक इन लोगों में जरा सी भी शक्ति रहेगी, they will keep creating disturbance in the world. They are the threat to the peace of the world, not only to the Middle East. ये विश्व में जहां भी है वही वही शांति को खतरा है। और ये इजराइल ने प्रतिज्ञा की है, जिस तरह के उनके प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है कि जब तक इनकी तरह कम करने के ये युद्ध रुकने वाला नहीं है और न ही रुकना चाहिए। बिकॉज जैसे हिजबुल्लाह खत्म किया, ईरान खत्म किया, तो इट इज द राइट टाइम कि ईरान को तरह खत्म करके ही इजराइल को रुकना चाहिए, और वो रुकेगा, तभी रुकेगा जब तक ये घुटनों पे ना आ जाए। लेकिन कर्नल साहब, सवाल ये भी है, कर्नल साहब सवाल ये भी है कि जब एक और अमेरिका की ओर से पहले चेतावनी जारी की गई थी, बावजूद इसके ईरान की ओर से इस तरीके से अगर मिसाइल हमले किए गए हैं, तो ऐसे में ईरान के पास इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? वो किसके आधार पर, किसके भरोसे वो बैठा हुआ है? क्योंकि इजराइल को तो कई देशों का समर्थन मिल रहा है। देखो, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ईरान की मजबूरी हो गई। जिस तरह हालिया का कत्ल हुआ उनके देश में, पहले उनके राष्ट्रपति को भले ही वो जांच में नहीं निकला हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ, बट इट इज मतलब ऐसा लगता है कि सपोज टू बी डन बाय द मुसाद। और जिस तरह हिजबुल्लाह का कत्ल किया, नाउ इट हैज बिकम मतलब मजबूरी हो गई है उनकी, क्योंकि उनकी देश की जनता भी ये कह रही है कि ऐसा हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। तो ईरान ने तो इस मजबूरी में अटैक किया, बट वो जानते नहीं है कि उन्होंने क्या छेड़ दिया है या क्या छेड़ दिया है। उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। नाउ दे आर गोइंग टू फेस इट। ठीक है, यानी कुछ नहीं है, वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तब तक थोड़ी सी भी शक्ति उनमें है तो लड़ने का, करने का बिल्कुल। यानी कर्नल साहब, हम ये कह सकते हैं कि ये मुहावरा यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है कि आ बैल मुझे मार। ईरान की स्थिति इस वक्त वही हो चुकी है। यस, ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ अनुपम जी, क्योंकि देखिए हम अगर तकनीकों का जिक्र कर रहे थे तो हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से इजराइल ने एक ऐसा काम कर दिखाया जिससे हर कोई हैरान रह गया, और देश, अलग अलग देशों में भी इस बात को लेकर के हैरानी जाहिर की गई थी जिस वक्त पेजर ब्लास्ट हुआ था लेबनान में, और उसमें कई लोग मारे गए थे। इसको लेकर के भी हम जरा और समझना चाहेंगे डिटेल में कि जैसे सर भी अभी बता रहे थे कि ईरान ने कहीं ना कहीं खुद ही आमंत्रण दे दिया है कि हाँ आप अब हमले कीजिए, जबकि उसको पता है कि वो पूरी तरीके से इजराइल के सामने टिक नहीं पाएगा। अब तो कॉम्बैट की स्थिति बन चुकी है, ग्राउंड जीरो ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इजराइल आगे बढ़ रहा है। क्या समझा जाए, तकनीक के मामले में या फिर हथियारों के मामले में ज्यादा पावरफुल कौन साबित हो पाएगा यहाँ पर? और ग्राउंड जीरो बैटल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मजबूत सबसे स्थिति में इस वक्त कौन है? देखिए सुरभि, अगर सीधा सा जवाब है कि अगर टेक्नोलॉजिकली बात करें तो इजराइल ईरान से बहुत आगे। अभी हमने 200 मिसाइलें जो फायर हुई हैं उसमें से 90% मिसाइलें आपने देखा हवा में ही खत्म हो गई हैं। ये है इजराइल की टेक्नोलॉजी। जिस तरह से उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को इन्वॉल्व किया वहां पर, जिस तरह से उन्होंने आयरन डोम और एरो का उपयोग किया है हवा में आते ही बैलिस्टिक मिसाइल को मारने में, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए ये होती है एयर डिफेंस सिस्टम। और उसके साथ साथ आपने पेजर ब्लास्ट का जिक्र किया, उसके साथ साथ हमने देखा है कि किस तरह से एक बड़े नामचीन व्यक्ति को हेलीकॉप्टर ब्लास्ट में उड़ा दिया जाता है, जिसके बारे में आज तक पता भी नहीं चला। वो ईरान के राष्ट्रपति हुआ करते। अब उसके बाद इस्माइल हानिया की मौत की बात करें, जो कि तेहरान के अंदर एक बहुत रिहायशी इलाके में बहुत ही अजीब और गरीब तरीके से कर दी गई, तो उसके बारे में भी अगर ऑफिशियली देखें तो इजराइल ने आज तक कोई स्टैंड लिया नहीं। तो ये नहीं कहा कि ये काम मैंने करवाए, लेकिन हकीकत ये है कि इतनी ताकत इजराइल के अंदर है
कि वो ईरान में कहीं भी कभी भी और किसी भी वक्त घुस करके किसी को भी एलिमिनेट कर सकता है। तो ये ताकत दिखाती है टेक्नोलॉजी के, उसमें इजराइल बहुत आगे है। लेकिन अगर आप लड़ाई की बात करें तो लड़ाइयां सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं लड़ी जाती हैं, और ये भी हमको समझना पड़ेगा कि भले ही टेक्नोलॉजिकली इजराइल एक बड़ा देश है, एडवांस कंट्री है, उसके पास तमाम तरह के हथियार हैं, लेकिन फिर भी अगर ग्राउंड फोर्सेस की बात करें तो ईरान बहुत पीछे नहीं रह गया उसके पास। ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, हम सबको पता है, और लगातार ईरान के ऊपर पश्चिमी ताकतों ने प्रेशर दिया है कि वो न्यूक्लियर हथियारों से बच्चों बनाने से बाज आ जाए। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ईरान के पास तमाम अत्याधुनिक ड्रोन्स हैं, जो कि हमने रूस यूक्रेन वॉर में जिनके ऑपरेशन देखे हैं। तो ईरान भी बहुत पीछे नहीं है, लेकिन हाँ, अगर 1-to-1 कंपैरिजन करें तो आज की डेट में टेक्नोलॉजिकली इजराइल आगे है। लेकिन जब बात आएगी फुल ऑन बैटल की, जब बात आएगी पूरी तरह से एक वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन की, तब आपको ये समझ में आएगा कि ईरान के पास भी ताकत है। और ईरान ने जो कल किया है वो मैं भी इस बात से सहमत हूं कि आप है मुझे मार वाली सिचुएशन है। ये वो सिचुएशन है जैसे मैंने भी कहा था कि ईरान ने खुद एक मौका दे दिया इजराइल को कि अब आप रिटेलिएट करिए, और वर्ल्ड पावर्स को कि आप ईरान को विलेन बना दीजिए, और एक तरह से वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स से अलग थलग कर ठीक है। यानी अनुपम जी, हम ये मान सकते हैं क्या कि ईरान को कहीं ना कहीं इस बात का भी डर सता रहा था कि अगर उसने रिवर्ट नहीं किया, अगर उसने इन हमलों का जवाब नहीं दिया, तो फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि मिडिल ईस्ट में उसकी ताकत, उसका वर्चस्व लोग ये समझने लगे कि बेहद कम रह गया है या खत्म हो चुका है। सुबह देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो अगर ईरान के बड़े बड़े अधिकारियों की बातें आप पिछले 15 दिनों की गौर करें तो ये सबके मुंह से एक ही स्टेटमेंट निकल रहा था कि उनकी बातचीत जो बाइडेन प्रशासन से चल रही है, और बाइडेन ने या पश्चिमी ताकतों ने विश्वास दिलाया है कि इस मिडिल ईस्ट के अंदर सीज फायर की बातें होंगी, बात करेंगे, लेकिन उसके बावजूद नसरुल्लाह के ऊपर अटैक हो जाता है। तो ईरान को यहाँ पर यह कहने का मौका मिला कि एक तरफ तो आप हमको सीज फायर के लिए तैयार कर रहे थे, और दूसरी तरफ आपका दोस्त इजराइल जो है अपने दुश्मनों को मारता जा रहा है। तो वहां पर एक ट्रिगर मिला ईरान को, और ईरान ने उसी का बदला लिया है। और दूसरी बात यह है कि निश्चित तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान चाहता है कि अब उसकी बादशाहत चले, तमाम देश उसके अंडर काम करें, तमाम देश उसके सहयोगी बन के काम करें, जो कि सऊदी अरेबिया, यूएई और टर्की को मंजूर नहीं है। टर्की हालांकि बहुत सोच समझ करके अपनी चालें चल रहा है, लेकिन खुले तौर पर सऊदी अरेबिया और यूएई, ये दो देश ऐसे हैं मिडिल ईस्ट में जो कि ईरान की मुखालफत करते हैं। यूएई के ऊपर तो ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो अपने एयर बेसेस को अमेरिका को दे रहा है, जहां से अमेरिका और इजराइल अपने एयरक्राफ्ट के जरिए हिजबुल्लाह के ऊपर और हमास के ऊपर और हूती के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो एक तरह से पूरा मिडिल ईस्ट दो धड़ों में बंट चुका है पहले ही। अब क्या है कि सिचुएशन आने वाले दिनों पता चलेगी कि इस जो ध्रुवीकरण हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसका वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में क्या फर्क पड़ेगा, और उसकी वजह से ईरान के ऊपर कितने सैंक्शंस लगेंगे, कितना बड़ा युद्ध थोपा जाएगा, या कितने ज्यादा हानि होगी इजराइल की या फिर ईरान की। ठीक है अनुपम जी। कर्नल साहब, मैं आपसे एक सवाल इसी को लेकर के करना चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए, हम ये जिक्र कर रहे थे कि एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने देख ली, लेकिन दूसरी तरफ अब इजराइल ये कह रहा है कि हमने अपने सैनिकों को पूरी तरीके से तैयार कर दिया है ग्राउंड जीरो बैटल सिचुएशन के लिए, यानी कॉम्बैट की स्थिति अगर आती है तो ऐसे में जब आमने सामने की लड़ाई होगी तो इसमें तो यह माना जाता है कि ईरान के पास भी अर्धसैनिक बलों के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो इजराइल यहाँ पर क्या थोड़ा सा कम पड़ता है, क्योंकि तकनीक के माध्यम में तो कोई इस बात में दो राय नहीं है कि इजराइल तकनीक के मामले में ईरान से कई गुना ज्यादा आगे है। ऐसा है, यस, ग्राउंड पे लड़ने के लिए सोल्जर्स की जरूरत होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी आज के टाइम में, जैसे पेजर अटैक हुआ, रेडियो सेट अटैक हुआ, मैं तो ये कहूंगा कि ईरान के लोगों को तो रोटी खाते हुए भी डर लगेगा कभी रोटी में ब्लास्ट ना हो जाए। बिकॉज जिस तरह इजराइल की टेक्नोलॉजी है और जहां तक मोसाद की पहुंच है वो ईरान की समझ से परे है। और ये नहीं है कि इजराइल अकेला है, इजराइल के साथ तो बहुत सारी शक्तियां जो खड़ी है साथ में। When Israel is going to incite Iran, suppose वो ग्राउंड फोर्सेस से वहां पे अटैक करते हैं, तो उसके साथ तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं, क्योंकि ये भी बहुत सारे देश इकट्ठे हो रहे हैं। देखो, इजराइल को तो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ना है। इन्होंने अपनी धमक जमाने के लिए, अपनी तमकत जमाने के लिए लड़ रहे हैं। ये इजराइल को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इजराइल अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। और जब सर्वाइवल का सवाल होता है तो दे विल गो फॉर ऑल आउट। और जिस तरह की जिजीविशा और जिस तरह लड़ने का जो ताकत है इजराइल के पास, बैंक के जो वहां की जो जनता है जी, वो इतनी ज्यादा है कि इनको समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी या ग्राउंड फोर्स के पास बराबर हो सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
और जिस जिजीविशा के साथ इजराइल इज गोइंग टू फाइट, वो जिजीविशा ईरान के पास नहीं है, वो मुद्दा ही नहीं है ईरान के पास लड़ने का, लेकिन इजराइल के पास मुद्दा है, सर्वाइवल का सवाल है। ठीक है सर, चलिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को साझा करने के लिए। तो अमरदीप त्यागी जी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और अनुपम तिवारी जी भी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।